Assalamu alaikum to all. First of all, sorry for late session, and thanks for those who are joining in this session. Basically, first of all think about that what is cyber and what is security and what is SOC analyst, what is these types of terms, and the cyber security is the emerging field or not. So that all of these questions are clear in this session, and after this session you are able to know about all of the stuff like cybersecurity, SOC analyst, and many other domains, and also you are differentiate about these domains that are used in cybersecurity. Tell me that my voice is clear or an issue. You can tell me in chat. Think my voice is clear. Okay. First of all, you about that which course is best, what type of course I join, and which what are the benefits after this course, and like other stuff. And after this, I can get a job, I can get start a business, yeah, any other things that are in your mind that we start these things or not. Then in this session, clear about these domains and also clear about all of the things after this session. Then we start the session. Basically, what is cybersecurity is. See, every 11 second, a business falls victim to a cyber attack. Guess that 90% of those attacks were preventable. Data is the new oil, but unlike oil, once it's stolen, डेटा जो है वो हमारे ऑयल की तरह है, और एक दफ़े जब ऑयल चोरी हो जाए तो हम कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते। इसी तरह ही साइबर सिक्योरिटी क्या है कि जब तक हम साइबर की डोमेन में नहीं समझते, उस टाइम तक हम यानी ऑनलाइन डाटा की अहमियत को नहीं समझते, उस टाइम तक हम उसकी सिक्योरिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते। ठीक है? On billion dollar banks to over WhatsApp chats, cybersecurity is not just a tech things anymore. It's everyone's problem. And that what where is the role of SOC analyst become not just relevant, but it is critical role that we are study about there. You are here today because you are curious. Maybe you are frustrated with your current job. Maybe you are just starting your journey, or maybe you are dreaming of earning in dollars, working from home, yeah, abroad, whatever your reason, tell me. Let me tell for this, you don't need to be genius. आपको कोई जहीन होने की कुछ बहुत होने की ज़रूरत नहीं है. You do not need a degree from MIT. Kept in mind, इस साइबर सिक्योरिटी या SOC एनालिस्ट में आने के लिए आपको किसी भी डिग्री या कोई प्रोफेशनल कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस फ़ील्ड में आएँ और आपसे ये डिमांड की जाएगी। मैटर क्या करता है? स्किल्स आपकी मैटर करती हैं, ठीक है? आपकी एक्सपर्टीज़ मैटर करती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं, आपकी सर्टिफ़िकेशंस मैटर करती हैं, बहुत कम हद तक लेकिन मैटर्स करती है कि आपने उस उनमें से क्या सीखा है बेसिक। आर यू फील इज़ द राइट मैच, जो आपको चाहिए यहाँ इस फील्ड में ग्रो करने के लिए वो क्या है? आपका एटीट्यूड है और आपका राइट माइंडसेट है। आगे चल के हम सेशन में डिस्कस करेंगे कि एक तो हमारी ट्रांसफरेबल टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जबकि दूसरा हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो क्या होती है? हमारी हमारी सॉफ्ट स्किल होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इन दिस फील्ड में। लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम मोहम्मद हुसैन, and I am your trainer and guide for this journey, this SOC analyst journey, for this SOC analyst whole force. Okay, I am a cybersecurity enthusiast and an educator with hands-on experience in SOC operations, ethical hacking, and security training. The past few years, I have helped dozens of students and professionals like you break into the cybersecurity field. I did many jobs like teaching jobs in government sectors. Recently, I am doing jobs in Tarabs Limited that are UK-based company. First of all, I clear about my mission. You make cybersecurity practical, exciting, and accessible. फिर साइबर सिक्योरिटी कितना सादा अंदाज में आप लोगों को पढ़ा देना कि आप उसको आसानी से समझ सकें, ठीक है? यू नॉट जस्ट थ्योरी फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक की थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट जहन में हो कि जब आपके सामने कोई ना कोई टर्म आए तो आपके जहन में आ जाए कि ये इसके बारे में हमने पढ़ा था और ये क्या होती है।
this session, I'm going to show you what a SOC analyst really does. What skill you need, how companies like Google, Microsoft, and even local banks rely on SOC, and most importantly, how you can become one of them, even if you are starting from scratch. Okay, हमको बेसिक कोई नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा कोर्स है, ये बेसिक टू एडवांस की तरफ शुरू से लेकर एंड तक इसमें पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है? मोर देन दैट वी टॉक अबाउट करियर सेट, और इससे ज़्यादा मैं हम इस सेशन में बात करेंगे करियर के हवाले से, सर्टिफिकेशन के हवाले से, एंड हाउ यू कैन बिल्ड अ हाई इनकम पाथ इन जस्ट 3 to 6 months. क्रिकेट इज नॉट शॉर्ट ऑफ हैकर्स, इज शॉर्ट ऑफ डिफेंडर। जो बेसिकली जो दुनिया है वो सिर्फ हैकर्स की नहीं है, जबकि डिफेंडर्स की है। ज़ाहिर सी बात है, हम डिफेंड जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें इस फील्ड को समझने का मौका मिलेगा, और हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे भी। इफ़ यू आर रेडी टू बिकम वन ऑफ, अगर आप चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं तो आप उनमें से एक प्लेस पर हैं। Yet dive into why cybersecurity is exploding in demand and why this SOC analyst role is one of the most exciting and future-proof job in tech. इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि SOC एनालिस्ट की जो जॉब है वो फ्यूचर में इतनी ज़्यादा हाई डिमांडिंग क्यों होने वाली है। ठीक है ना? बिफोर स्टार्ट दी एजेंडा, लेट्स वी आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि हाउ मेनी ऑफ यू एवर हैव एवर हर्ड अबाउट दिस SOC या सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बिफोर टुडे? बताएं, हमारे पास जितने मेंबर मौजूद हैं वो हमें जल्दी जल्दी चैट में आंसर करें कि कितने लोग आप में से साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं, ताकि तो मुझे आप लोगों के बारे में अंदाज़ा हो सके कि हमारा पहली टॉपिक है कि साइबर SOC एनालिस्ट है क्या, व्हाट इज़ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट, व्हाट इज़ SOC। हमारा टुडे एजेंडा क्या, हम इस सेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, SOC के बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ SOC एनालिस्ट के बारे में बात करेंगे, कैरियर पाथ्स और सर्टिफिकेशंस कौन-कौन सी आप कर सकते हैं, फ्री भी, पेड भी, जो भी हो सकती हैं, ठीक है? की स्किल्स एंड टूल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो प्रोग्राम है और आपका जो सेल्फ स्टडी आप करते हैं, उसमें क्या डिफरेंट है, और कुछ साइबर सिक्योरिटी मिथ्स के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में कौन-कौन सी मिथ्स अ, जो कि गलत हैं, और कौन-कौन सी है जो सही हैं, जो कि समझी जाती हैं। उसके अलावा हमारा प्रोग्राम आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है अच्छा SOC एनालिस्ट बनने में, एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी करियर स्टार्ट करने में के लिए, क्या ना? तो ये सब कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा एंड साइबर सिक्योरिटी। पहली बात, डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है? आप जैसे कि समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे पास इस टाइम मौजूद है मौजूद है अ, जितना भी हमारे पास इस टाइम आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में, इवन कि आपके मोबाइल्स में, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं, ये सारा क्या है? डेटा। ठीक है, डाटा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? साइबर सिक्योरिटी में मूव करने से पहले आपको इस बात के हवाले से जानना ज़रूरी है कि कुछ डाटा साइबर सिक्योरिटी में डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना? जब तक आप डाटा की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, हम प्रोटेक्शन की तरफ जा ही नहीं सकते, ठीक है? सो बेसिकली डाटा की अहमियत का अंदाज़ा आपको इस बात से होना चाहिए कि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव ओन डाटा सेंटर्स एंड ऑपरेट ओन डाटा सेंटर्स, ठीक है? किस इन पाकिस्तान रिसेंटली आफ्टर बिफोर few days ago, I listen and read a news about that in Karachi develop our data centers. फर्स्ट AI डाटा सेंटर जो कराची में अभी डेवलप हुआ है कुछ अर्सा पहले, जो कि पहला डाटा सेंटर है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई डाटा सेंटर मौजूद नहीं था। डाटा सेंटर क्या होता है कि जिधर हमारा सारा जो डाटे का मवाद होता है, ये जितना भी आपका ऑपरेट हो रहा है, ये जितना भी आपके पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज़ के पास जितना भी डाटा है, ये सारा किधर है? डाटा सेंटर्स में मौजूद है। और इनमें मतलब इनमें आगे पर्सन बैठे हुए हैं तो जो इन डाटा को ऑपरेट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि भाई कितने डाटा जनरेट हो रहा है और कितना डाटा हमारे पास महफूज है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि एवरी डे 2.5 क्वांटम ट्रिलियन बाइट्स ऑफ डाटा आर क्रिएटेड। कैन यू बिलीव कि इतना डाटा डेली की बेसिस के ऊपर बन रहा है, फ्रॉम बैंक ट्रांजेक्शन टू मेडिकल रिकॉर्ड। इफ दिस डाटा इज स्टोलन या करप्टेड, इट कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस, प्राइवेसी ब्रीचेस एंड इवन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ज़ाहिर बात है, ये डेटा अगर ब्रीच हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, तो बहुत भारी अमाउंट में पे करनी पड़ कंपनीज़ को पे करनी पड़ती है, और इस वजह से वो इतने
कॉस्टली टूल्स एंड जिसको कहे ना पर्सन्स, यानी लाइक सो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इस तरह के पर्सन्स को हायर करते हैं ताकि वो एक अपने सिस्टम्स को, अपने जितने भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये उनकी रीज़न होती है कि वो इन हायर करते हैं, और इस वजह से सोक एनालिस्ट एक मोस्ट इन डिमांड फील्ड है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है हमारे पास? पहली पहली एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि भाई जो 2017 में एक आर्कोफिस ब्रीच हुई थी, ठीक है, 147 मिलियन डॉलर मिलियंस का रिकॉर्ड लीक हो गया था, ठीक है। 2023 में मूवी हैक में गवर्नमेंट एंड बिजनेस पैरालाइज्ड हो गए थे, ठीक है। तो मतलब भी साइबर सिक्योरिटी की कोई ब्रीच होती है तो इतना भारी नुकसान हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास यानी फील्ड में इन लोगों को, इस फील्ड में पर्सन्स नीड होते हैं ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और इस चीज़ को यकीनी बना सके कि वो डाटे की प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है। जिस वजह से आने वाले दौर में भी और अब भी साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी जॉब्स अनफुलफिल्ड हैं, जो कि बंदे उनको चाहिए, जबकि हमारे पास पर्सन उस तरह के हाई कंपेटेबल नहीं है जो कि उस तरह की जॉब्स के एलिजिबल हो सके। अच्छा, लेट्स डाटा की इंपॉर्टेंस के वाले से आपको क्लियर हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है चैट के अंदर, मैं आंसर कर दूंगा। देन मूव फॉरवर्ड। बट व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड डाटा फ्रॉम डिजिटल। सिंपल वर्ड्स में इसको समझना है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर मुराद है ऑनलाइन, सिक्योरिटी से मुराद है तहफ़्फ़ुज़, यानी ऑनलाइन हमारी जितने भी एसेट्स हैं उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अब वो उसमें जो हमारे पास एसेट्स हैं उसमें हमारे पास सिस्टम्स भी आ जाते हैं, उन पर उनमें हमारे पास नेटवर्क भी आ जाते हैं, उन पर हमारे पास डाटा, डिजिटल अटैक्स से प्रोटेक्ट करना, तमाम चीज़ों का क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अच्छा, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के क्रिटिकल इतनी क्यों है कि कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स है, जब कोई भी साइबर क्राइम होता है तो कंपनीज़ को जितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ जो साइबर क्राइम है वो एक्सपेक्टेड जो हिट करती है कितनी? 10.5 ट्रिलियन एनुअली बाय 2025। 2025 में इतना, यानी जो कॉस्ट साइबर क्राइम की जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा हमें पे करनी पड़ी है। जॉब डिमांड क्या है कि 3.5 मिलियन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स ग्लोबली अभी अनफिल्ड पड़ी हैं, जिनके लिए बंदे उनको ज़रूरत है आईएससी के मुताबिक। इस वजह से दिस ब्रिंग अस टू वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड रोल इन द साइबर सिक्योरिटी, क्या है? सोक एनालिस्ट, ठीक है। इस वजह से जो सोक एनालिस्ट है वो साइबर सिक्योरिटी में एक मोस्ट इन डिमांड फील्ड है। इस वजह से कि भाई अब बेसिकली सोक का काम क्या होता है कि व्हाट इज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। हम इस टॉपिक पे आएंगे क्योंकि हमारा आज टॉपिक यही है। इस हवाले से आपको बताया था कि सोक क्या होता है और उसका बेसिकली क्या नाम है, काम क्या है, ठीक है। डेस्टिनेशन ऑफ सोक, ठीक है। अ सोक इज लाइक द नर्व सेंटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में जो सोक है वो एक नर्व सेंटर की तरह है एक ऑर्गेनाइजेशन में। लेट्स गो टुवर्ड एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी साइबर सिक्योरिटी में या कोई भी सिस्टम अगर हैक हो जाता है, ठीक है, या ब्रीच हो जाती है हमारे पास, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? वो क्या करता है? सोक का बंदा करता है। अब इसकी मिसाल यूँ लें कि हमारे पास जो अटैक्स हैं वो उसके आने का कोई टाइम नहीं है। हमारे पास किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे अटैक आ सकता है, ठीक ठीक है। तो अगर अटैक तो आ रहे हैं लेकिन आगे से पीछे डिफेंडर पर्सन नहीं बैठा तो वो कंपनी को नुकसान दे देगा, जिस वजह से उनका काफ़ी सारा डाटा ब्रीच होकर उनको बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। इस वजह से इसकी जो जॉब है वो हमारे पास 24 आवर होती है और 7 डेज में होती है, ठीक है। अच्छा, ये नर्व सेंटर की तरह काम करता है। नर्व सेंटर की एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि एक जिस्म है, हमारा जो बॉडी है उसका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी से निकाल दिया जाए तो उसमें मतलब जो हमारा ब्लड है वो किस तरह थ्रू ट्रेवल करता है? नर्व्स के थ्रू। अब किडनी में से निकाल ली जाए, नर्व्स हमारे से निकाल ली जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगी, यानी ज़ाहिर बात है ब्लड को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगी, यानी ज़ाहिर बात है ब्लड को कोई रास्ता नहीं मिलेगा सर्कुलेट करने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पर्सन डेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको साइबर सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट करें तो सेम ऐसे अगर हम साइबर सिक्योरिटी में से सोक को निकाल लें, नहीं को काम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इट इज़ अ टीम एक्सपर्ट। ये टीम एक्सपर्ट होता है जो कि क्या करता है? मॉनिटर करता है, डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है साइबर थ्रेट्स को 24/7, ठीक है। रियल टाइम
अच्छा, की पॉइंट क्या है, SOC के फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब हम SOC एनालिस्ट अगर कोई बंदा बनता है या करता है, वो क्या कर रहा होता है, मैं क्या कर रहा होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा होता है, ठीक है, सीम डोज के थ्रू, लॉस के थ्रू, नेटवर्क ट्रैफिक के थ्रू, ठीक है। दूसरा थ्रेट डिटेक्शन कर रहा होता है, ठीक, मालवेयर मास्किंग इंट्रूजन, मालवेयर फिशिंग इंट्रूजन, ठीक है। तीसरे नंबर पे वो क्या कर रहा होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, यानी जैसे कंटेनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ब्रीचेस, ठीक है। ये सब कुछ वो कर रहा होता है SOC एनालिस्ट का पर्सन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसका टीम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई अगर आप एज अ SOC एनालिस्ट जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, अच्छा इसको भी हम डिस्कस कर लें कि भाई इसकी जो जॉब्स हैं वो किस किस सेक्टर में आती है। नहीं, हमारे पास पाकिस्तान में या ओवरऑल सिक्योरिटी कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें SOC एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी के जो पर्सन हैं वो रिक्वायर होते हैं, ठीक है। उनमें क्या-क्या आ जाता है, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास ट्रिलियम है, ठीक है, कंपनी है जो कि सिक्योरिटी की कंपनी है। इसी तरह हमारे पास एक और डिफरेंट कंपनीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा तमाम आपके बैंकिंग सेक्टर में है, जो बैंकिंग सेक्टर में हेड ऑफिसेज़ हैं, जैसे ज़्यादातर कराची में, लाहौर में भी हैं, उनमें SOC एनालिस्ट की जॉब होती हैं, जो कि उनका जितना भी डाटा होता है उसके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए SOC एनालिस्ट के पर्सन्स की रिक्वायर होती है, नीड होती है, ठीक है। अच्छा जब आप जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ SOC एनालिस्ट, तो हमारे पास 3 ये टियर्स होते हैं। पहले जो आप इनिशियल जाते हैं वो क्या, टियर 1 एनालिस्ट, उसका काम क्या होता है, मॉनिटर करना, अलर्ट्स को ट्रियाज करना, अलर्ट्स को देखना कि क्या आ रहे हैं और उसमें डीप जाके जाके सर्च करना है कि भाई इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इसके आने की वजूहत क्या हैं, ये सारी चीज़ें एक बेसिक लेवल के ऊपर आपका टियर 1 का एनालिस्ट का रोल होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास टियर 2 एनालिस्ट होता है, उसका क्या होता है, डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, यानी उस अलर्ट के डीप जा रहा होता है कि आया कहाँ से है, इसकी वजूहत क्या है, हमारे सिस्टम के अंदर कौन सी जिस पे वल्नरेबिलिटीज़ हैं, यानी कमज़ोरियाँ थी जिसकी वजह से ये हमारे पास ब्रीच आई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह टियर टियर 3 का हमारे पास क्या होता है, थ्रेट हंटर, क्या प्रोएक्टिव थ्रेट हंटिंग करना, ठीक है। और हमारे पास मैनी थ्रेट को देखना है कि वो किस तरह से आ रहा है और किस तरह से हम उसको हमारे हंट करते हैं कि इस मतलब ये आने से पहले हम उसको देखते हैं कि ये हमारे सिस्टम को नुकसान दे सकता है। अच्छा, इसके पे लेवल्स होते हैं, एक होता है हाई रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है लो रिस्क। जो हमारे पास थ्रेट आता है, अगर हम उसको देख रहे होते हैं कि वो लो लेवल का है, हम उसको इतना वेटेज नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। मीडियम वाले को हम ये देखते हैं नहीं कि भाई अगर आया वो हमारे सिस्टम को कितना एक नुकसान पहुंचा सकता है, या अगर नुकसान पहुंचा सकता है तो वो हम उसको उसका सॉर्ट आउट करते हैं, उसके सोल्यूशन की तरह। इसके अलावा हमारे पास हाई होता है, वो ज़ाहिर बात है हाई रिस्क है, हमने उसको वो हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लिहाजा हमने उसको ख़त्म करना हो। इसके अलावा SOC मैनेजर होता है जो कि इन इन तमाम टियर सी के लेवल्स को देख रहा होता है, वो ऑपरेशंस कर रहा होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है कि इमेजिन करें कंपनी का नेटवर्क है जो कि रैनसमवेयर अटैक उसके ऊपर हो चुका है। अब SOC टीम उसको डिटेक्ट करेगी, क्या डिटेक्ट करेगी, उस अनयूजुअल फाइल इंक्रिप्शंस को, ठीक है, आइसोलेट करेगी उस जो इन्फेक्टेड सिस्टम्स है, जो कि जिन जिन सिस्टम्स में वो अफेक्ट हुआ है उसको खत्म करेगी, आइसोलेट करेगी। इसके अलावा प्रिवेंट करेगी फर्दर डैमेज से, जितने भी फ्यूचर में या आगे फर्दर डैमेज ना हो उससे क्या करेगी, प्रिवेंट्स करेगी। दैट इज व्हाट SOC डू डेली। ये SOC एनालिस्ट के काम होते हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर हम लोग करते हैं। ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई बेसिकली SOC वाला पर्सन करता क्या है। एवरीथिंग क्लियर है? आप जरा चैट में मुझे बता दें, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। टॉपिक रोल ऑफ SOC एनालिस्ट, बेसिकली SOC एनालिस्ट का रोल क्या होता है, हम पीछे से इसको डिस्कस कर रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। SOC एनालिस्ट क्या होते हैं, फर्स्ट डिफेंडर होता है, ठीक है। साइबर अटैक जब थ्रेट आता है उसका जो रिस्पॉन्डर होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है, वो कौन सा होता है। बात ये कर रहे थे कि रोल ऑफ सिक्योरिटी SOC एनालिस्ट की, कि SOC एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या होता है कि एक SOC एनालिस्ट जो होता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, ठीक है। जब थ्रेट कोई भी आता है उस पर रिस्पॉन्ड जो करता है वो क्या होता है, SOC वाला पर्सन होता है टू साइबर थ्रेट्स। लेट्स ब्रेक डाउन देयर डे टू डे टास्क। हम इसके डे टू डे टास्क देखते हैं कि क्या होता है। पहला क्या होता है, मॉनिटर सिक्योरिटी अलर्ट, सीम्स डैशबोर्ड्स के थ्रू वो मॉनिटर करता है किस चीज़ को, सिक्योरिटी अलर्ट्स को, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो क्या कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है इंसिडेंट को, इज इट फास्ट या पॉजिटिव या रियल, ठीक है। ये मॉनिटर कर रहा होता है सिक्योरिटी अलर्ट्स को के सीम डैशबोर्ड से। उसके बाद जब हम यानी जब उसके बाद सीम डैश के ऊपर हम इसको देखेंगे कोर्स के अंदर फर्दर मूव ऑन यूज़ करेंगे, जैसे में हम मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करेंगे, स्प्लंक है, क्यूरोडार है, क्वालिस है, ठीक है।
उनमें हम ये देखेंगे कि सीम डैशबोर्ड के ऊपर हमें सिक्योरिटी अलर्ट्स नज़र आएगी। ठीक है, अब आते हैं वो अलर्ट्स नज़र आ गए, उसके बाद हमने उसको देखना क्या आएगा कि वो फॉल्स पॉजिटिव है या रियल अटैक है। यानी फॉल्स पॉजिटिव से मुराद वो अटैक जिसका मतलब इतना ज़्यादा हमारी जो मतलब बज़ाहिर वो लग रहा होता है अटैक, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, तो वो फ़ॉल्स पॉज़िटिव होता है। अगर वो नहीं होगा तो वो रियल अटैक होगा। तो अगर रियल अटैक है तो हमने उसको सॉर्ट आउट करना है उसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है? दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, ख़ास को ये हमने देख लिया, मॉनिटर कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया। तीसरे नंबर पे हमने इनिशियल ट्रियाज को हमने उसको परफ़ॉर्म करना है। क्या करना है? थ्रेट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है कि आया वही बात जो मैंने पहले कर गया हूँ कि लो लेवल है, हाई लेवल है या मीडियम लेवल है। जब हमने वो कर लिया, ठीक है, फिर हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी है और रिपोर्ट इंसिडेंट करनी है फॉर कंप्लायंस एंड इम्प्रूवमेंट की तरफ कि हम उसको किस तरह से क्या नाम है डॉक्यूमेंट के थ्रू हम उसको प्रोटेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं थ्रेड को और क्या नाम है उसको हमने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमने उसको लाना होता है ताकि हम उसको उसकी प्रॉपर डिटेल दे सके कि इसकी नोयत क्या है थ्रेड की और हम इसको किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए आप लोग आंसर करेंगे मुझे चैट के अंदर या जब भी आप इसको देखें। इफ़ यू सी 100 अलर्ट इन अ सीट, अगर हम शिप डैशबोर्ड के अंदर 100 अलर्ट देखते हैं तो हम इस कैसे डिसाइड करेंगे कि वो उसमें से हम किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे पहले नंबर के ऊपर। ये आप लोगों को कुल क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका मुझे चैट में आंसर करेंगे, देन मैं आपको फिर इसका प्रॉपर आंसर भी कर दूँगा। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड फर्दर। अब बात आती है स्किल्स के हवाले से कि आप SOC एनालिस्ट में आ रहे हैं, इवन कोई भी फील्ड में जाते हैं तो रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी हो या हमारे नेट में यानी कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल हो, तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स का स्किल्स आ जाती हैं, एक टेक्निकल्स आ जाती हैं, एक हमारे पास आ जाती है सॉफ्ट। ठीक है, टेक्निकल स्किल में अगर हम उसको रेलेवेंट करें SOC एनालिस्ट के हवाले से तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेटवर्किंग बेसिक। ठीक है, TCP IP मॉडल, DNS, फायरवॉल्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास टेक्निकल स्किल्स में आ जाएंगी। ठीक, अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाती हैं, सीम रूल्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि IBM, क्यूरोडार क्या और स्प्लंक, माइक्रोसॉफ्ट स्टैम्प, ये हम इन टूल्स का यूज़ कर रहे होंगे सीम डैशबोर्ड्स और अलर्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, मालवेयर एनालिसिस की। मालवेयर क्या होता है कि मिसाल फिशिंग अटैक, रैनसमवेयर अटैक, ये सारी मालवेयर की टाइप्स हैं। पहले तो पहले मालवेयर्स की टाइप्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम अटैक पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, फिशिंग अटैक है तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि वो फिशिंग है, फिशिंग अटैक के कौन-कौन से मेथड, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करें। लॉग एनालिसिस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिस्टम के नेटवर्क्स के लॉग्स को पढ़ना कि वो क्या है, किस तरह से है, उसमें हम क्या-क्या चीज़ें प्रयोग होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास टेक्निकल स्किल्स में आ जाएँ। अच्छा, टेक्निकल स्किल से भी ज़्यादा किसी भी फील्ड में सॉफ्ट स्किल मैटर करती है, कि सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से भी हम थोड़ा-सा इसको देखेंगे कि भई हम किस तरह से वो डेवलप कर सकते हैं और कौन-कौन से सॉफ्ट स्किल हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए या ओवन किसी भी फील्ड के लिए ज़रूरी हैं। क्या है कि आपको ग्रो माइंडसेट चाहिए। एक एक सेट को एक अलर्ट को आप डिफरेंट ज़ाविये से डिफरेंट नुक्ते नज़र से देखें। ठीक है? दिस इज़ इवॉल्विंग इंडस्ट्री, टू बी इवॉल्विंग इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट विलिंगनेस टू लर्न। आपका क्यूरियस होना चाहिए, लर्निंग आपकी हमेशा चलते रहना चाहिए। आप कभी भी किसी भी फील्ड में ये नहीं है कि आप चाहे 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाए, आप ये नहीं कह सकते कि भई अब मैं इसमें माहिर हो गया हूँ। नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है, आप हमेशा सीखते रहें। नए-नए अलर्ट्स आ रहे होते हैं, नए-नए अटैक्स आ रहे होते हैं, नए-नए इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, चीज़ें आ रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है? इसके अलावा आपके पास AI आ गए, उससे हम चीज़ को आपके पास हमेशा रहना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, आप हमेशा ग्रो माइंडसेट के साथ लर्निंग आपकी हमेशा चलती रहनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास डिवर्स पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है? एक चीज़ को मैंने बताया मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के मुख्तलिफ ऑप्शंस के ज़रिए आप देख सकें कि भई टुगेदर कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाती है, ठीक है? डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, प्रेशर के अंदर भी रहकर, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्लॉइटिंग थ्रेट टू नॉन टेक टीम को समझाना जो कि आपकी टेक टीम से रेलेवेंट नहीं है, ये आपको बेसिकली काम है जो कि हम आप हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हमारे पास आ जाती है टाइम मैनेजमेंट कि आप क्योंकि हमारे पास अलर्ट आ रहे होते हैं, एक मिसाल के तौर पर हमें टाइम दिया जाता है कि 1 दिन के अंदर इस अलर्ट को या इस जो हमारे पास ब्रीच हुई है, हमारा डाटा अगर कुछ तो इसमें ख़त्म। अब सेंस ऑफ अर्ज
अर्जेंसी में आप के पास है कि इतना स्टेमिना कि आप उस प्रेशर को समझ सकें और उसको क्या नाम है बर्दाश्त कर सकें अपने अंदर, आपके अंदर वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है या नहीं। तो ये आप मैटर करती है, टास्क को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, अप्रोप्रिएटली, कि उसके बाद एसेंशियल है जो कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड। आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमारे पास ये चीज़ें स्किल्स भी मैटर करती है साथ हमारे टेक्निकल स्किल। जो हमारा जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि हम इस SOC एनालिस्ट को कोर्स में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला जो हम प्रैक्टिस करेंगे SOC टूल्स के हवाले से वो क्या क्या सीम सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट प्लान, उसमें आ जाता है क्यूरोडारा आ जाता है, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ टूल्स पालाइज और डिफरेंट हमारे पास वायर शार्प नेटवर्किंग के टूल, उनको भी हम करेंगे। EDR एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स जो कि हमारे में ज़रूरी है, ये क्राउड स्ट्राइक सेंट्रल वन, ठीक है। थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, रिकॉर्डेड फ्यूचर, थ्रेट कनेक्ट, इनको टिकटिंग सिस्टम, जीरा, सर्विस नाउ फॉर ट्रैकिंग इंसिडेंट, इन सब टूल्स और टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे एज अ SOC एनालिस्ट और एज अ SOC एनालिस्ट ले ऑन। इसमें मैटर क्या करता है कि कंपनीज जो हैं, हम इन टूल्स को डिस्कस करने का रीज़न क्या है कि जो कंपनीज हैं जितनी भी साइबर सिक्योरिटी की या मेन बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो क्या है, वो इन टूल्स को यूज़ करती हैं डेली बेसिस के ऊपर। और जो हमारी ट्रेनिंग है वो आपको इसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगी आफ्टर दिस, ठीक है। करियर पाथ्स और आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है इस फील्ड के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पहला हमारे पास ऐसे कि बता चुका हूँ कि टियर 1 SOC एनालिस्ट होता है, टियर 2 होता है, टियर 3 होता है। इनके टास्क भी डिफाइन किए हुए हैं, आप लोगों को बता इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। मजीद हम इसको थोड़ा सा जेल में देख लेते हैं कि पहले हम इसमें मॉनिटर करेंगे सीम डैशबोर्ड्स को, तो क्या हमारे पास 24/7 अलर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, के बाद फिर याद करेंगे अलर्ट्स को, जैसे कि जैसे फिशिंग अटैक हो गया, हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम उसको मूव फॉरवर्ड किसकी तरफ कर देंगे, टियर 2 की तरफ। टियर 1 की आप एनुअल सैलरी देख सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की जो मतलब जॉब्स हैं वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अलावा या फैसलाबाद, उसके अलावा कहीं नहीं है। इसकी जो जॉब होती है ना वो बेसिकली हेड ऑफिस में होती है, ठीक है। और हमारे पास हेड ऑफिस या मेन जो हमारे पास वो हमारे पास कराची, लाहौर या इस्लामाबाद के, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो पेइंग कैपेसिटी है वो पता है हम है एज कम्पेयर टू आउटसाइड UK, कतर, इन कंट्रीज में ज़्यादा है। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो हम इंडस्ट्री आपसे इंडस्ट्री के जितने भी फील्ड है जिनको 5-5 साल, 10-10 साल का, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर और जॉब भी कर रहे हैं, कि कोई UK के अंदर है, कोई कतर के अंदर है, कोई ओमान के अंदर है, कोई दुबई के अंदर है, उससे भी हम आपका इंटरेक्शन करवाएंगे ताकि आपकी नेटवर्क बिल्डिंग ये सारी चीज़ें हो सके। अच्छा, और इतनी जो एनुअल सैलरी है वो पर्सन आपको बताएँगे कि हम ये ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद टियर 2 SOC एनालिस्ट की जॉब जो होती है वो डीप डाइव होती है, एस्केलेटिंग इंसिडेंट एनालाइज़ करते हैं और मालवेयर सैंपल्स को, रैनसमवेयर को, ट्रोजन को और कोऑर्डिनेट करते हैं IT टीम के साथ कि वो इन ब्रीचेस को देखें और इसको समझें। अच्छा, उसके बाद टियर 3 में हमारे पास क्या आ जाता है, SOC एनालिस्ट, थ्रेट हंटर, ठीक है। होते हैं हिडन थ्रेट्स को, जो लाइक APT, एडवांस प्रिसिजन थ्रेट्स को, जीरो डे वल्नरेबिलिटी को इम्प्रूव, SOC टूल्स, रूल्स, रिड्यूस फॉल्स पॉजिटिव जो भी हो उसको भी हम कम करें, लीड इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग, ये सारा काम किस चीज़ का होता है, टियर 3 SOC एनालिस्ट का। बाकी ये जो टर्म्स है APT, जीरो डे, ये हम कोर्स के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ होती है, इनकी वजूहत क्या होती हैं, क्यों आते हैं, ठीक है ना। तो ये और आखिर में SOC मैनेजर लीड का काम होता है जो इन सब चीज़ों को देख रहा होता है और मैनेज कर रहा होता है ओवरऑल वर्किंग फिनोमेना को। साथ साथ ही जो कैरियर पाथ तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्टिफिकेशन जो हैं 80% जो सिक्योरिटी जॉब्स है ना वो सिक्योरिटी प्लस या सिक्योरिटी की सर्टिफिकेट्स कहते हैं कि आपके पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि भाई अगर आपके पास नहीं भी है तो वो आपको टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम में ये कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर आपको इनिशियल लेवल पर जाने के लिए, ये जॉब एक्वायर करने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए और आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सर्टिफिकेशंस स्टार्ट इनिशियल में इतनी मैटर नहीं करती। अच्छा, एंट्री लेवल के पास हमारे पास जो सर्टिफिकेशन आती हैं वो क्या आती हैं, CompTIA, सिक्योरिटी प्लस, फाउंडेशन, जिसके अंदर आपके पास 100 रोल्स की तमाम फाउंडेशन होनी चाहिए कि किस रोल का क्या काम होता है और आपके पास उसके बाद उसके अगेंस्ट आपसे कौन-कौन से क्वेश्चन और कौन-कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है। जब मिड लेवल के पास जो हमारे पास आ जाती हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम्स, CEH, GIS,
जनरल सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास मिड लेवल की सर्टिफिकेशन है, जो हैंड्स ऑन हमारे पास थ्रेट एनालिसिस करता है, स्किल्स देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद एडवांस में अब आपके पास जो आ जाती हैं GIAS, GCIA, GSFA, OSCP, ठीक है, थ्रेट हंटिंग एंड फोरेंसिक के जितने भी आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, ये अच्छी सी कंपनीज और काफ़ी इनके प्राइसेस हैं। आप अगर कोई बंदा अफोर्ड करता है तो वो इसको कर सकता है, ठीक है। इसके बाद लीडरशिप के जो आपके पास आपके जिस यानी जिसको आप मेन हेड जो होता है किसी भी कंपनी का, वो उनके इसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो CISSP, CISSM, सॉक मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी लीडरशिप के वो तमाम सर्टिफिकेट्स को करता है। और आपको हम उन लोगों से हिलवाएंगे और उन लोगों से आपका सेक्शन लाजमी करवाएंगे जिन लोगों ने सर्टिफिकेशन की हुई है और इंडस्ट्री के अंदर बैठे और काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मूव फॉरवर्ड करते हैं। हमारे पास पहला जो है ओवर प्रोग्राम और आपका सर, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको क्या ऑफर कर रहा है और आप सेल्फ स्टडी से क्या कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो फील्ड है, इस फील्ड में आपको रिक्वायर्स क्या होती हैं, हैंड्स ऑन लैब्स, ठीक है, सर्टिफिकेशन गाइडेंस, जॉब प्लेसमेंट और मेंटोरशिप। जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस और मेंटोरशिप, ये जो मेंटोरशिप वाला पॉइंट है ना, ये आपको कोई नहीं देगा। आपको पता है, आपके पास एक क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि भई आप हमारे पास सारा ऑनलाइन डाटा, सारे ऑनलाइन सर्टिफ़िकेट सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। हम वहाँ से क्यों करें और आपका कोर्स क्यों बढ़ी? बेसिकली इस कोर्स का मतलब और आप मुहैया करने का पर्पज़ ये होता है कि मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाए। आप एक गाइडेंस दी जाए कि आप इस कोर्स को कैसे करके एक अच्छे जिसको कहें SOC एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है ना? जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस आप प्रोवाइड करना, SOC एक्सपर्ट के साथ आपकी वन टू वन कोचिंग होना, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्किंग का आपका वो है, वो आपका जो मतलब भई हम करा सकते हैं और एक इंडस्ट्री का जो एक्सपर्ट बंदा है वो करा सकते हैं। आप खुद से जितना भी कर लें एक मतलब ख़ास एफर्ट लगा के भी उसको उस तरह से एक्वायर नहीं कर सकते। अच्छा, और हमारे प्रोग्राम में क्या आ जाता है, रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस आ जाती हैं, ठीक है? रोड मैप्स आपके पास सिक्योरिटी प्लस से लेकर CIS पे हम आपको रोड मैप दे सकते हैं कि भई आप किस तरह से इन सर्टिफ़िकेशंस को फ्री में कर सकते हैं या कौन-सी फ्री वाली सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं। और कोई पर्सन अगर इन सर्टिफ़िकेट्स को करना चाहता है, तो वो इसके लिए वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर सकता है। जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम, रिज़्यूमे रिव्यू, ठीक है? इसके अलावा एम्प्लॉयर कनेक्शन, ठीक है? रिज़्यूमे बनाना कैसे है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, ये सारी टेक्नीक्स होती हैं जो कि जो लोग जॉब ले रहे होते हैं, उनको समझ होती है। इसके अलावा एम्प्लॉयर के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। खुद खुद आप ज़ाहिर बात है लिमिटेड फ्री टूल्स ले सकते हैं, ठीक है? उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जेनेरिक जो ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक यूट्यूब, ट्यूटोरियल, फॉर्म, उन लोगों से आप खुद से यही कर नेटवर्किंग आप कर सकते हैं। एक ख़ास डोमेन में रह के लिंक्डइन या कि वो भी आपको किस तरह से करनी है, वो भी आपको मसलन जिस पर्सन के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं, वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसका क्या तरीका हो सकता है कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें मतलब आपको सेल्फ स्टडी में तो एक ख़ास हद तक मिलती हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में हम आपको एक अच्छे मेंटोर की जो काम होता है, वो आपको क्या गाइड करता है, इन चीज़ों को गाइड करता है कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कॉमन मिथ्स जो हमारे पास आ जाती हैं शौक के हवाले से कि शौक जो है वो एक बोरिंग है, जबकि हकीकतन आपको इन सारे यानी स्लाइड्स के बाद अंदाज़ा होगा ये बहुत ही इंटरेस्टेड फील्ड है। हैकर्स को हंट करना एक रियल टाइम में और हर वक्त आपके पास एक जिसको कहें ना न्यू चीज़ें आना, क्यूरियस रहना, इस तरह से आपके पास क्यूरियोसिटी बढ़ती है और क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो फिर आप जीनियस होते हैं, ठीक है? ओनली जीनियस नीड अप्लाई, सिर्फ जीनियस पीपल इसको कर सकते हैं, दूसरी मिथ जो हमारे पास है, जबकि हकीकत ये है क्यूरियोसिटी है तो आप खुद ही जीनियस हैं, ठीक है? और जो हमारा प्रोग्राम है वो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है जिस वजह से आप ओवरऑल स्किल प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? अच्छा उसके बाद उसके बाद में हमारे पास एक मिथ आती है, ठीक है? यू नीड अ कॉलेज डिग्री, ठीक है? फिर मसलन आपको इस कोर्स करने के लिए या मतलब आपको एक जॉब गेट करने के लिए क्या चाहिए? कॉलेज की डिग्री चाहिए, ठीक है ना? ये एक हमारे पास एक मिथ आ जाती है, ठीक है? तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको किसी किस्म की कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए, आप सर्टिफिकेट चाहिए, आप सर्टिफिकेशन के थ्रू और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू लाइक को पर आप हायर हो सकते हैं, ठीक है? क्या है अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास कि व्हाई एनरोल इन आवर पेड, क्या आप हमारे जो 100 का पेड कोर्स उसके अंदर क्यों एनरोल करें? उसकी क्या रीज़न एक तो ये है उसकी रीज़न एक तो ये है पहले नंबर पर कि हैंड ऑन लैब हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? सीम्स डैशबोर्ड और मालवेयर एनालिसिस इंसिडेंट्स आप बाकी कोर्स ये थी आप
से लास्ट अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। एक सिमुलेशन एक कौन समझेंगे इसको इन्हें तरफ चाहेंगे सेव इन क्या क्या रिज्यूम प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, रिज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू कोचिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अम, इसमें कोर्स में मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेशन गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। आप गाइड करेंगे कि आप किस तरह से वैल्यूएबल सर्टिफिकेट कर सकते हैं। उसके बाद दी टाइम ऑफर इसको आप देख सकते हैं कि आप अगर एनरोल करते हैं तो आपको जो भी इसमें कंसेशन हो सकेगी फी के अंदर आप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू, ठीक है, कि आप किस तरह से अच्छी लिंक्डइन को प्रोफाइल बिल्ड करनी है और किस तरह से आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे और सो रोल किस मूव कर सकते हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मसलन आप खुद तो कर सकते हैं, लेकिन एक तो मतलब आपको इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। हम आपको 3 मंथ के अंदर, ठीक है, इसको कंप्लीट करवा के आपको एक रोड मैप और प्रॉपर एक बता सकते हैं, जो कि आपको कुछ एक तो ढूँढने में, एक तो प्रॉपर कोर्स ढूँढने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी हम कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स बनाएँ, कौन-कौन सी चीज़ें करें। तो ये सारी चीज़ें आपको ठीक है इंटरनेट पे मिल जाएँगी, सिवाय इसके जो है जॉब प्लेसमेंट एंड असिस्टेंट, ये तो आपको नहीं मिल सकती ना। रिज़्यूमे प्रिपरेशन भी शायद आपको कोई वीडियो मिल जाए, आप उसमें बना लें, ठीक है। जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट, अच्छा, उसके अलावा प्रोफाइल रिव्यू कोई ये फिज़िकल पर्सन ही कर सकता है, ठीक है। गाइडेंस आपको हैंड्स ऑन जितने भी होंगी वो भी आपको मेंटरशिप जो है वो आपको सिर्फ़ पर्सन से ही मिल सकती है, वो आपको चैटजीपीटी के हिसाब का कोई पर्सन नहीं दे सकता, ठीक है। लास्ट में हमारे पास यही था। अब अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, आपने हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक जॉब नहीं है, ये फ्रंट लाइन डिफेंस है, ठीक है। आप इसमें क्या कर रहे होते हैं, एक फ्रंट रोल पर रह के डिफेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो वर्ल्ड है यानी दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोटेक्टर्स की। अ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो चैट में पूछ सकता है, ठीक है, और ग्रुप में पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि साइबर सिक्योरिटी एक जॉब नहीं है, जबकि ये फ्रंट लाइन डिफेंस है, जिसमें हम वर्ल्ड को ज़रूरत है प्रोटेक्टर्स की, ठीक है। और अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो आप 3 से 6 मंथ के अंदर इस फील्ड में एक अच्छे अच्छे पोजीशंस पर एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड, हम लेते से इसकी आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास कवर हो जाए एक आउटलाइन, ताकि आपके माइंड में आ जाए कि भाई हम इस कोर्स के अंदर क्या कवर करने वाले हैं। ये हमारे पास सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की आउटलाइन है, ठीक है। ये और भी में अन्य आप देख सकते हैं आईटी नेटवर्किंग एंड ओएस बेसिक्स, ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। डे 1, डे 2, लैब, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास प्रैक्टिकल्स होगा वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो हमारे पास थ्योरेटिकल पढ़ने की चीज़ें होंगी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जा सकते हैं आपसे, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड लाइन को हम डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, ये उस पे कंटेंट लिखा हुआ है। सिक्योरिटी टूल्स इंट्रोडक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीम बेसिक्स एंड डैशबोर्ड, स्प्लंक, ठीक है, इंस्टॉल ये टूल्स। थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पांस को डिस्कस करेंगे। सीम्स एंड थ्रेट इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास डेडीज में डिवाइड हुए हुए हैं। इंसिडेंट रिस्पांस साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। मालवेयर एनालिसिस एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। थ्रेट हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। एडवांस लैब प्रैक्टिस हैं, कैरियर प्रेप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉग्स एनालिसिस, डीप ड्राइव जाएँगे, पैकेट एनालिसिस, नेटवर्किंग की चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। होम लैब सेटअप बनाएँगे आप अपना, ताकि आप एक प्रोजेक्ट शो करा सकें आपको जॉब के लिए। तो जो कि क्वेश्चन होता है कि भई आपने प्रैक्टिकल क्या किया है, प्रैक्टिकल आपने कोई होम लैब बनाई है, वो हम बनाएँगे, ठीक है। पहली कैरियर रेडीनेस, आप इसके बाद आप कैरियर के लिए रेडी हो जाएँगे, और फिर रिज्यूमे राइटिंग और लिंक्डइन ब्रांडिंग और गिटहब का आपका पोर्टफोलियो, ठीक है, और ये आप अपने गिटहब पे अपलोड करेंगे। और एंड में आपका लाइव जो होगा ये टीम को अगर देखेंगे हम डेमो शो कराने के लिए, और इसके बाद आपकी इंटर्नशिप्स और फाइनली आपको जॉब के हवाले से असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। एग्जीक्यूट डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट इन रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट पीयर रिव्यू, हम चैलेंजेस एंड प्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। ये थे आपका आज का सेशन और ये आपकी कोर्स आउटलाइन, जो कि आपके साथ में भी शेयर कर दी जाएगी। ये होप सो कि आप
करेंगे और जिसको गो थ्रू करेंगे और जिन्होंने इनरोल करना होगा वो कर लेंगे। हमारा 10 जुलाई को फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है। आप लोगों ने जिसने इनरोल करना है जल्दी से इनरोल कर लें और 48 आवर्स के अंदर आपके पास डिस्काउंट है इस कोर्स को फ़ी पे करने का है, तो वो आप जल्दी से उसमें उसको देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें कर सकते हैं।